Hello students, in this video we will start with exercise 1.2 class 11th of chapter number sets. So chapter number 1 sets. So in this section we will study about the empty set, the finite and infinite sets. Okay. So what is an empty set? नाम से ही पता चल रहा है द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स इन इट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. सो यहाँ पे लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. सो वी आर गिवन एन एग्जाम्पल दैट लेट्स से ए इज़ अ सेट of elements x such that x is greater than 1 but less than 2. Also x is a natural number. Okay, so is it possible कि x एक natural number हो और less than 2 और greater than 1 हो? नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं they are not natural numbers, right? So these are not natural numbers, so this सेट विल हैव ज़ीरो एलिमेंट्स. सो अगर हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना हो, सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस or using not symbol. So this is the representation of an empty set. An empty set is a set which has zero elements in them. कोई भी element उस criteria या condition को satisfy नहीं करेगा. So that will indicate your empty set. Okay. Now coming on to the finite and infinite sets. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. सो ये भी बहुत क्लियर है दैट अ फाइनाइट सेट इज़ अ सेट जिसके एलिमेंट्स को वी कैन काउंट कि ठीक है इसमें 10 एलिमेंट्स आएंगे या इसमें 50 एलिमेंट आएंगे या 100 एलिमेंट आएगा या लाख एलिमेंट आएगा. लेकिन इनफाइनाइट सेट इज़ समथिंग विच हैज़ infinite number of elements that we cannot count. So let's take example. So let's say there is a condition given to you that there is a set of all the letters of word book. ठीक है. So वो set क्या बनेगा अपना? That will be BOK. ठीक है. This is the element, this is a set of all the letters of word book. So इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स है, राइट? 3 एलिमेंट है. सो फाइनाइट है, वी आर एबल टू काउंट. बट लेट्स से आई गिव यू a set that let's say count all the number of stars in the universe. Okay, this is the set of all the number of stars in the universe. You won't be able to, because there are infinite number of stars, we cannot count. But then there is third example that I want to give you कि आपको लगेगा कि it's an infinite set, but वो infinite set होगा नहीं. जैसे इन्होंने भी यहाँ पे example लिया है, this example that C represents a set of all the men लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको लगेगा कि भाई दुनिया में कितने ही लोग हैं, एवरी मिनट समवन इज़ बीइंग बोर्न, समबडी इज़ बीइंग बोर्न, तो हम कैसे काउंट करें ना? इट्स इनफाइनाइट. but it's a finite set. You may not be able to count the people at particular moment because somebody is dying, somebody is getting born. लेकिन total number of people on this earth at a given time is finite. So this might seem like an infinite set, but this will also be a finite set. समझ में आई? empty set is something which has zero elements. finite set is something which has countable number of elements, be it a very large number, but हमें पता है कि यहाँ पे आके नंबर रुक जाएगा, 1 करोड़ पे आके नंबर रुक जाएगा. so that will be also a finite set. and infinite set is a set which has infinite नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अभी फाइनाइट को तो हम सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हमने पढ़ा, राइट? बट इनफाइनाइट को हम सेट बिल्डर में तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते. किसी भी लेट्स से नेचुरल नंबर्स का जो सेट है दैट इज़ ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट, राइट? बिकॉज हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि कहाँ तक जो है हमारा नेचुरल नंबर्स, मतलब वी कैन कीप ऑन काउंटिंग फॉर एवर, इट विल नॉट स्टॉप. ठीक है. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट इन अ रोस्टर फॉर्म? वी विल राइट few of the initial elements such that a person is able to identify a pattern and then understand कि वो कौन सा सेट होगा. ठीक है. सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि अच्छा फाइनाइट को तो आप बोथ फॉर्म्स में लिख सकते हो, बट आप इनफाइनाइट सेट को भी लिख सकते हो या नहीं? सो द आंसर विल बी येस, वी कैन राइट इनफाइनाइट सेट also in roster form as well as in set builder form. Okay. Moving on to this example 6 to understand the concept better.
सो एग्जाम्पल 6 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट वी हैव टू टेल. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है दैट x belongs to natural number. X is a part of natural number and x minus 1 x minus 2 is equal to 0. So यहाँ पे x minus 2 x minus 1 is equal to 0 means कि x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी. So this implies that there are only two values of x which satisfy this set. So इस set के में दो ही elements हैं. This is a finite set. ठीक है. Moving on to part 2. पार्ट 2 में हमें गिवन है दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दिस मीन्स कि x की वैल्यू या तो प्लस या -2 होगी कंसिडरिंग दिस इक्वेशन. लेकिन हमें एक और कंडीशन गिवन है कि x नेचुरल नंबर ही है. सो दैट मीन्स x की वैल्यू सिर्फ +2 ही होगी. सो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट में. सो दैट विल बी ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. मूविंग ऑन टू पार्ट 3. Part 3 में we are given that x is a natural number and 2x minus 1 is equal to 0 is also satisfied. x is a natural number समझ में आया. बट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/2 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है. अब इसमें नेचुरल नंबर नहीं है तो x की वैल्यू तो कोई भी ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो रही. ठीक है. सो दिस मीन्स दैट दिस इज़ एन एम्प्टी सेट. अब एक एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हम उसको फाइनाइट इनफाइनाइट की कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते. इफ़ अ सेट इज़ एम्प्टी दैट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में वी आर गिवन दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ प्राइम. ठीक है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि both the conditions will be satisfied by infinite number of natural numbers. we can't count कि यहाँ से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद जो भी नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा या फिर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा. तो there is a infinite number of we can get infinite number of numbers which will satisfy both these conditions. So it will be an infinite set. Then moving on to the fifth part. Fifth part में we are given that x is a natural number and x is odd. So every other natural number is odd and we can count up to infinity, right, to get odd natural numbers. So this is also an infinite set. Okay. Moving on to another concept of equal sets. अब equal sets क्या होते हैं? What are equal sets? Equal sets are sets. लेट्स से ए सेट गिवन है आपको जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3 एंड बी सेट गिवन है आपको जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 1 and 2. सो इक्वल सेट्स आर टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. ठीक है. जैसे यहाँ पे ए और बी. अब आप बोलोगे कि ए में तो 1 2 3 है और बी में 3 1 2 है. तो ऑर्डर डजेंट मैटर. टोटल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. ठीक है. मतलब अगर उसमें सेम टाइप के एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट्स है तो दे शुड ऑल्सो बी हेयर. और अगर इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें होने चाहिए. तो दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है. और अगर एक दूसरी एग्जांपल है, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सेट सी. यहाँ पे लेट से मैं लिख रही हूँ 3, 1, 1, 2. तो अब इज़ दिस सेट इक्वल टू ए एंड बी? यस. क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन डजेंट मैटर. हम यूनिक एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं. ठीक है. बिकॉज 3 2 बार ही लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट विल स्टिल हैव यूनिक एलिमेंट्स 1 2 and 3. सो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी. तो टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए इक्वल्स टू बी. एंड इफ़ टू सेट्स आर नॉट इक्वल देन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. ठीक है. दिस इज़ हाउ वी डिनोट. नाउ इक्वल सेट्स शुड बी. इक्वल सेट्स हमें कैसे पता चलेगा? डजेंट मैटर उनका ऑर्डर क्या है, डजेंट मैटर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं. यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल एंड एग्जैक्टली सेम. Okay, let's do a couple of examples to understand this. So we have example number 7. So यहाँ पे we are given pairs. Find the pairs of equal sets if any, give reasons. तो A सेट में हमारे पास क्या है? 0. B सेट में हमें given है that x is greater than 15 and x is less than 5. तो x is less than 5 and greater than 15. So we will write
what we will write? We'll write 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This is something which I have written as wrong. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि x belongs to a natural number or not. x rational number भी हो सकता है, x irrational number भी हो सकता है, x could be anything. It doesn't matter. हमें given नहीं है कि वो natural number ही होगा. So this is not the roster form of set B. तो ये मैंने ट्रिक की आपको समझाने के लिए लिखा है कि डोंट गो विद दिस अप्रोच. जो गिवन है उसी को समझो. सी पार्ट में आपको गिवन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें पता है कि 5 ही होगा इसका आंसर. डी में हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसमें -5, आएगा. ई में क्या गिवन है? x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना होगा हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 का. तो इसका क्या आएगा आंसर? लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. ओके, x स्क्वायर माइनस 3 5 15. ओके, सो लेट्स टेक -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5, देन 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5. विल गेट x प्लस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ई का क्या गिवन है? पॉजिटिव रूट. x इज़ पॉजिटिव रूट, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे. तो ई सेट क्या है हमारा? 5. तो इसमें अगर आप देखोगे बी सेट हमने लिखा नहीं है, बट इट कांट बी अ एम्प्टी सेट, राइट? और 0 कुड नॉट बी अ वैल्यू, क्योंकि बी सेट में हमें कंडीशन क्या गिवन है? दैट x इज़ लेस देन 5. Sorry, x is less than 5 and greater than 15, right? So B is an empty set. Sorry, my bad. I thought ki x is greater than 5. Okay, so x is less than 5 and greater than 15. This is not possible at the same time. So B is an empty set. So इसमें हमें equal set कौन सा है? C और E. C and E are the only pair of sets which are equal in example number 7, because उनमें एक ही एलिमेंट है एंड दैट टू 5. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8. सो वी आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर. सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x द सेट ऑफ लेटर्स अलॉय. सो अलॉय में a आता है, l आता है, o आता है एंड y आता है. देन वी आर गिवन b सेट्स ऑफ लेटर्स लॉयल. सो वी गेट l, वी गेट o, वी गेट y एंड वी गेट a. सो आर दीज इक्वल? येस, बिकॉज ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है. तो दोनों में 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं और चारों सेम है. सो एक्स इज इक्वल्स टू बी. ओके, देन वी हैव सेकेंड पार्ट जहाँ पे ए गिवन है दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड देन एन स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. So that means n is an integer and n square is less than equal to 4. That means कि a का वैल्यू होगा -2, -1, 0, 1 and 2. And we are given b. b is what? b belongs to real numbers and is the solution of equation x square minus 3x plus 2. So solutions x का वैल्यू आएगा 1, 2. सो दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक तो इसमें यूनिक एलिमेंट्स 5 है और इसमें 2 ही हैं. ठीक है, सो वैसे इक्वल नहीं होंगे. और अगर इसमें भी 5 एलिमेंट्स होते तो ये एग्जैक्टली इक्वल होते, तो तब हम बोल सकते थे कि दीज आर इक्वल. सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. ओके,